Yeah, Ravi, I got one comment in the comment section about a roadmap for NIMSA 2026, and I thought why not. तो यार बात करते हैं अभी कि NIMSA 2026 के लिए क्या सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी and what are the things that you have to follow in order to get a good rank in NIMSA. तो अभी बात करते हैं सबसे पहले जो पॉइंट है यार, that is the best YouTube channel that you have to follow for NIMSA. Okay, there are numerous YouTube channels that teach you math. Now, what are you know the the most important channels that I followed and I have seen people following, throughout their uh, self-preparing journey. So the first one is physics वाला. Obviously ये तो सारे बंदे ही जानते होंगे इसको. And then comes Unacademy JE जिससे मैंने खुद प्रिपेयर किया था, मोहित त्यागी सर जिन दोनों से मैंने खुद प्रिपेयर किया था. Then you can follow all these three channels, and apart from this, if you find anyone like जिसकी बातें आपको समझ आ रही है तो उनको आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली द पॉइंट इज that you need to understand the topics. Okay, you need to follow the syllabus, you need to understand the topics, the concepts that you have to apply in the questions, right? Now let's go to wasting time in lectures. Okay, now we क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो कोर्स नहीं लेते हैं या फिर जो कोर्स लेते भी हैं, okay, then what they do is they'll just see the lectures and they will think that now they know everything, because he ultimately what happens that when you watch the videos you tend to understand them, at the same point. But for 1 to 3 days you might think, okay, I remember these points, but after a week you will definitely forget them. तो क्या करना है? What is the precautions that you have to take while you watch the lectures? You don't have to watch a lecture more than 1.5 hour in a day. Okay, 1.5 hour in a day. If you are going for a coaching centers, definitely how much they are teaching you, you go for that. But if you are, taking my suggestion, do not watch a video for more than 1.5 hour in a day. You can watch it multiple times in a day, but not but do not do this, watching a 3 to 4 hour video in a day, continuously repeating them, going backwards then coming again. Don't do like this. किसी भी वीडियो को अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है उस पर, तो आप उसको 1.5 hour के लिए कंटिन्यूसली वॉच करो. और कंटिन्यूसली वॉच करने का मतलब है कि विदाउट गोइंग बैकवर्ड्स. ओके, there might be some points that you don't understand at that point, but what I'm saying कि you do that, but you watch only for 1.5 hour. Okay, क्योंकि क्या होता है कि लेक्चर्स देखते देखते आपको हैबिट हो जाएगी कि मैं लेक्चर से ही पढ़ूंगा, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है. ओके, द हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दैट यू डू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ठीक है. नाउ कमिंग अबाउट निम्स 2026 रोड मैप. तो ये जो आपके सामने टेम्पलेट है, तो ये सिर्फ उनके लिए है जो कि सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है. तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू to get a rank under 200. This is a guarantee for sure, uh, words that I'm going to tell you that you can follow and get the rank. Okay, so what are those things? For the first, I have made 4 sections, in which you can in the first 3 months, what you can do, you can complete the NCRT book for class 11th and 12th. No matter what any teacher, any student is telling you on YouTube कि मत करो NCRT मत करो, यार ऐसा नहीं होता. ठीक है, I'll tell you my own marks. Okay, you'll be leave it. I'm going different way. Yeah. So the in the June, August, and September. But let me tell you, I was getting NIT 3G, but I selected NIT Warangal. There was a reason behind this. I'll tell you in some other video. Okay. Now, in the July, August, and September, in the first 3 months, what you have to do, you have to complete the NCRT book. Okay, you have to complete the NCRT book for 11th and 12th, and do not memorize the questions. Okay, a lot of people, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो memorize करने चले जाते हैं questions को. मैथ के क्वेश्चन memorize नहीं होते यार, है ना? Even if you memorize, see, getting into an IIT is something that makes, that gives a proof that you are smart. Okay, and smart people do not memorize things, they understand things. Okay, go with the concept.
do each and every exercise, do each and every miscellaneous questions, examples, whatever, even if they are easy, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, है ना। बहुत टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको डेफिनेटली हेल्प होगी, क्योंकि सारे प्रैक्टिस करने के लिए, रैंडमली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ एनी कोचिंग सेंटर इज टेलिंग यू कि टेक माय टेस्ट सीरीज बिकॉज वहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं, तो झूठ है, ऐसा नहीं होता। कैसे? you yourself think, no, how can any coaching center make the same question paper that comes in an exam? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो think wisely. I won't recommend you any specific channel or any specific platform from which you can take the test series, but you can decide yourself. Okay. Now coming to October, November, and December, in the next 3 months, what you have to do is you have to start solving the NIMSET PYQs. Now, how you have to solve the NIMSET PYQs? आपको बस ऐसा नहीं करना कि बुक उठाया और सारे क्वेश्चन करने लगे। नो, आपको करना क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट्स देखना है, ठीक है। आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया, आपको क्वेश्चन का लेवल पता है, ठीक है। और फिर अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार निमसेट क्वेश्चन पेपर के जो पीवाई क्यूज है, उनको कैसे अप्रोच करें। उनको अप्रोच करने का सिंपल तरीका यही है कि आप उनमें कीवर्ड्स ट्राई करो, फाइंड करने का, क्वेश्चन को एनालाइज करो, टाइम दो। और ऐसा नहीं करो कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो लेट्स गो टू डाउट नट, लेट्स गो टू यूट्यूब, लेट्स गो टू गूगल एंड सर्च द आंसर्स। ऐसा करोगे तो आपको ये मतलब हैबिट हो जाएगी आपकी, और फिर आप कभी भी खुद का ब्रेन यूज नहीं कर पाओगे। तो ट्राई टू यूज योर ओन ब्रेन एंड लर्न थ्रू इट। ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। जनवरी, फरवरी एंड मार्च में आपको तीनों चीज़ पे फोकस करना होगा। आपने कंप्यूटर स्टार्ट नहीं किया, लॉजिकल स्टार्ट नहीं किया है, और आपका ऑलमोस्ट मैथ्स का सिलेबस डन है, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च में आपको क्या करना है? बस आपको पीवाईक्यूज करने हैं। नो बुक नीडेड फॉर लॉजिकल एंड कंप्यूटर। ओके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग आपको पीवाईक्यूज से करने हैं, कंप्यूटर आपको पीवाईक्यूज से करने हैं। और आप पूछोगे इसके लिए यूट्यूब चैनल कौन सा है? यूट्यूब चैनल इसके लिए यार आई थिंक बहुत सारे हैं। और अगर आपको उनसे सेटिस्फैक्शन नहीं होती, तो आप क्या करते हो कि जो भी यूट्यूब चैनल्स है उनके भी पीवाईक्यूज के वीडियो अपलोड होंगे आई थिंक, है ना। तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। आई वॉन्ट रिकमेंड एनी। और उसके बाद हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हो सकता है क्वेश्चन का लेवल जो है इंक्रीज किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स गेटिंग फेमस, एमसीए इज गेटिंग फेमस नाउ। तो क्या कर सकते हो आप लोग कि जेई के जो मेंस के पीवाईक्यूज है ना, ठीक है। मतलब ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें एक्स्ट्रा एज चाहिए, ठीक है। सबके लिए नहीं है। आपको अगर एज चाहिए, बाकियों से आगे बढ़ना है आपको, और अच्छा करना है, तो जेई मेंस के पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम दे के इनके भी, क्योंकि देखो 3 मंथ्स है आपके पास, है ना, एंड इज मोर देन एनफ, ठीक है। 3 मंथ्स इज मोर देन एनफ। और आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने ना, सारे क्वेश्चन नहीं करने आपको, क्योंकि आपने, देखो, मैंने बहुत ही सीरियली वाइज बताया है। जब आप निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी है, जब आप पीवाई यूज़ करोगे तो आपको हेल्प होगी। जब आप जेई मेन के पीवाई यूज़ करोगे तो आपको निमसेट से कनेक्शन बनाने में हेल्प होगी कि यार एक्चुअली में क्या इनमें कोई कोरिलेशन है या नहीं है, तो आप समझ पाओगे, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या करना है आपको कि डेली रिवाइज करना चालू कर देना है, ठीक है। रिवाइज करने से क्या होगा कि आपके जो भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो ब्रश अप होते रहेंगे, ठीक है। आपको सडनली अगर टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको रिवाइज डेली करते रहना है। क्योंकि जो भी आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स आते हैं, कि ऐसा नहीं होता कि वो भी आपके एग्जाम में आएंगे, या फिर अगर एग्जाम में खराब आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा कर लोगे। तो इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। टेस्ट सीरीज सिर्फ आपके टाइमिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए होती है, क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड को बढ़ाने के लिए होती है, ठीक है। और लास्टली आता है आपका अप्रैल, मई एंड जून। तो जून आप अपने हाथ में रखो, ठीक है, पूरा रिवीजन पे फोकस दो। बट अप्रैल एंड मई में क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। कोई भी कोचिंग सेंटर वाले बोले कि ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, इससे फायदा हो जाएगा, उससे फायदा हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ाई किया है, सिर्फ और सिर्फ उसको रिवाइज करो। जो भी टेस्ट सीरीज ली है उसको एनालाइज करो, ठीक है। और पीवाई की उस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। सिर्फ 2 मंथ्स ये करना है आपको, नथिंग एल्स, नो कोर्स, नथिंग, ठीक है। यूट्यूब पे मत जाके देखो कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग टू अ कोर्स। अभी अगर आप कोर्स के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने जो टीचर है आपके उन पे बिलीव करो, ठीक है।
क्योंकि आपने अगर उनको चुना है तो कुछ सोच के ही चुना होगा, तो मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। आप उनके पूरा पूरा उन पे भरोसा करो, और बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत जाओ, है ना? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट के पीछे अगर जाओगे कि यूट्यूब पे भी देख लेता हूँ, यहाँ भी देख लेता हूँ, आपने कोर्स लिया है, अपने टीचर पे भरोसा रखो, जो भी पढ़ाते हैं, जो भी टेस्ट दे रहे हैं, उनको टाइम से कंप्लीट कर लो बस। अभी फॉर स्टूडेंट्स गोइंग टू कॉलेज एंड प्रिपेयरिंग देमसेल्फ, अभी अगर आप कॉलेज जा रहे हो, खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए भी वही सेम रोड मैप होगा जो कि मैंने दिया था स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बाय देमसेल्फ एंड स्टेइंग एट होम। अभी बहुत बच्चों को ऐसा लगेगा कि यार मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता, टाइम होता है एनफ। जब मैं भी कॉलेज जा रहा था, अब अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने एक ईयर गैप लिया था क्योंकि मेरे मार्क्स कम आए थे, ऐसा नहीं है, मेरे मार्क्स वहाँ भी अच्छे आए थे, बट आई वॉज गेटिंग एनआईटी कुरुक्षेत्र, ठीक है, इसीलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था, है ना? तो कॉलेज के साथ बढ़िया से मैनेज हो सकता है, आराम से मैनेज हो सकता है। तो अब आपको ओवरथिंक नहीं करनी, है ना? डू नॉट ओवरथिंक कि कॉलेज कैसे होगा, बट आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी जो कॉलेज के प्रिपरेशन है, एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है, वो एक वीक पहले हो जाना चाहिए, कि आपके जो 1 वीक आगे आने वाले वो हैम्पर ना हो, है ना? ज़्यादा टेंशन ना हो आपको। बस यही है। और बेस्ट बुक्स की बात कर ले तो मैंने आपको बता दिया कि एनसीईआरटी आपको 11 12 की आनी चाहिए। और अरिहंत का जो ये एमसीए का बुक होता है, आपने देखा होगा कि एमसीए के लिए अरिहंत में बुक आती है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, वो तो ले ही लेना, ठीक है? फिर से एमसीए के सॉल्व पीवाईक्यूज ले लेना, और जेई मेन के पीवाईक्यूज ले लेना। आपको लॉजिकल और कंप्यूटर के लिए कोई बुक नहीं जरूरी है। नाउ बेस्ट कोचिंग फॉर 2026 प्रिपरेशन, आप सबको बहुत वेट होगा, तो मैं बता दूं कि यार कोई बेस्ट कोचिंग है ही नहीं, ठीक है? Although all of them try to promote their own way of teaching, that is the best, and try to show their results which make no sense. अभी आपको जितने भी कोचिंग सेंटर वाले हैं वो आपको बताएंगे कि यू नो मेरे कोचिंग से 100 बच्चे निकल गए, 200 बच्चे निकल गए, 300 बच्चे निकल गए। ये नॉनसेंस है, ठीक है? ये नॉनसेंस है। क्योंकि यार जिसने भी प्रिपेयर किया था, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसने पैसे दे के प्रिपेयर किया था, ठीक है? पैसे दे प्रिपेयर किया था और खुद के हार्ड वर्किंग से प्रिपेयर किया था। ऐसा नहीं है कि कि कोचिंग सेंटर वालों ने उनको ऐसा कोई पिल दे दिया, कोई टैबलेट दे दिया जिनसे उनको सब कुछ आ गया, ठीक है? तो पूरा पूरा आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करेगा, कोचिंग आपको लेना है नहीं लेना है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है? मैं बोलने वाला कोई नहीं होता, बट अगर मेरी एक्सपीरियंस से पूछोगे तो कोचिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज, है ना? जो कि आपकी क्वेश्चन स्पीड, टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हाँ, और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इसको लेके अपने फ़ोन के या फिर अपने लैपटॉप के या फिर प्रिंट आउट लेके अपने स्टडी टेबल के सामने स्टिच कर लो, ठीक है? क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एज यू हैव ओनली 1 year टू प्रिपेयर, डू नॉट ट्राई टू गो फॉर वॉचिंग अ लॉट ऑफ अननेसेसरी वीडियोस लाइक लास्ट 8 मंथ स्ट्रेटजी, 7 मंथ स्ट्रेटजी एंड सो ऑन, ठीक है? बहुत सारे ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि अभी तो रोड मैप आ गया, है ना, बाकी आगे भी देखेंगे कि लास्ट 8 मंथ्स में क्या कर सकते हैं, 7 मंथ्स में क्या कर सकते हैं। अभी अगर आपने एक वीडियो को फॉलो किया है तो उसको फॉलो करो ना, ठीक है? और अभी देखो, मैं आपको ये नहीं बोला कि आप 10 घंटे पढ़ाई करो या फिर 9 घंटे पढ़ाई करो, ठीक है? मैं बस आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सीरियसली, तो डेली का मिनिमम 3 आवर्स सेल्फ स्टडी को डेडिकेट करो। इन 3 आवर्स में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करनी है, कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ये सारे काम करो। उसके बाद एनालाइज करो टेस्ट सीरीज को, ठीक है? और एक टेस्ट सीरीज की एनालिसिस जब तक खत्म नहीं होती, दूसरे टेस्ट पे मत मूव करो। उसके बाद नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इनिशियली इट लुक्स रियली इजी बट स्लोली व्हेन इट गेट्स हार्ड, आप लोग इसको छोड़ दोगे, ठीक है? तो स्टार्टिंग में जब आप अपना सिलेबस स्टार्ट करोगे तो बहुत इजी लगता है, ठीक है? आप सोचोगे कि यार इतना इजी है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मत करना ऐसा, ठीक है? आप डेली 3 घंटे ही पढ़ाई करना, बट पढ़ाई करना 7 घंटे 8 घंटे मत करो, मैं भी नहीं सजेस्ट करूंगा। बस 3 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी को डेडिकेट करना, अपार्ट फ्रॉम योर वीडियोस, टेस्ट एंड द होमवर्क दैट यू गेट, ओके? उसका डू नॉट टेल एनीवन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। अभी क्या होता है कि जब आप हार्ड वर्क अपना किसी को दिखाते हो, ठीक है, देन व्हाट हैपेंस कि यू नो इट गोज इन शिट एक्चुअली, ओके? इट डजंट मेक एनी सेंस इफ योर हार्ड वर्क इज सीन बाय अदर पीपल, है ना? तो आप शो ऑफ कर रहे हो, तो ये काम मत करना। उसके बाद प्रॉमिस करो खुद से कि यार रोड मैप की वीडियोस इसके बाद आप नहीं देखोगे, ठीक है? एग्जाम तक आप रोड मैप की वीडियोस नहीं देखोगे, या तो वो किसी कोचिंग सेंटर वाले की हो या फिर किसी की भी हो,
ठीक है, आपको नहीं देखना है। नाउ सोने, जागने, खाने पीने के बारे में ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। बट जो 3 घंटे मैंने आपको बोले, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, है ना, जो कि आपके रिजल्ट चेंज करने में बहुत हेल्प करेगा। तो यही था यार। थैंक यू वेरी मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। हेल्पफुल तो डेफिनेटली होगी। तो यही है, इसके बाद रोड मैप की वीडियोस कभी मत देखने जाना। और हाँ, जो भी ड्रॉप ले रहे हैं, ड्रॉप लो, बिंदास लो ड्रॉप। ठीक है। क्यों ड्रॉप लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे दो यू नो दो सिनेरियोज है कि ड्रॉप लेने के बाद ना, मैंने खुद से देखा है कि यार 90% से ज़्यादा लोग ड्रॉप के बाद अच्छा कर जाते हैं। तो अगर आपको 1 साल दे के और NIT, त्रिची, वारंगल, इलाहाबाद जैसे कॉलेजेस मिलते हैं, then why not? ठीक है। So try it out and thank you very much for watching this video.